I'm trying to tell you stories of people who made 50 to 100 crore business in their own lifetime. आप और हमारे जैसा कोई शहरों में छोटी जगह से आया हुआ बहुत रिच फैमिली से जो नहीं है, वो व्यक्ति खुद का उद्योग शुरुआत करके 20-30 साल के समय में 50 से 100 करोड़ तक अपना उद्योग कैसे बना सकता है, ये कहानी आप सुनिएगा। स्मॉल बिजनेसेस जो कि है, जैसे कि मैंने पहले पूछा था, तो हमारी इकोनॉमी के लिए कितने ज़रूरी है, एंड ऑब्वियसली मैं आज की स्टेट जानना चाहती हूँ। व्हाट इज द करंट स्टेट ऑफ स्मॉल बिजनेसेस एंड आल्सो फ्यूचर आप कैसे देखते हैं उनका? बॉटम ऑफ द पिरामिड इज वेरी बिग। जो छोटी कंपनियां होती हैं बहुत ज्यादा होती है नंबर्स में। जैसे कि इंडिया में ये छोटी कंपनियां लगभग 10 करोड़ से ज्यादा है। इन कंपनियों का कंट्रीब्यूशन जो जीडीपी में है वो 30% है, यानी 1/3 ऑफ आवर एंटायर इकोनॉमी इज मेड अप बाय दिस कंपनीज। तो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है, हमें ऑफ कोर्स लगता है कि बड़ी बड़ी कंपनियां होगी, रिलायंस में बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा, टाटाज में बहुत ज्यादा होगा, ये सही है। पर अगर हम सभी छोटी कंपनियों को अगर एक साथ इकट्ठा करते हैं एमएसएमईज को, तब पता चलता है कि उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे ज्यादा है रोजगार निर्मित में। टॉक अ लिटिल बिट अबाउट MCCIA। आपकी ऑर्गेनाइजेशन करती क्या है, हम ये जानना चाहते हैं। आप ये इसलिए दिया जा रहा है कि MCCI सोचता है, हमारा बोर्ड सोचता है कि हमारा ये उद्देश्य है कि हम लघु मध्यम उद्यमियों की सेवा करें, और इसमें MCCI के खुद के रिसोर्सेज लगे हुए हैं और कुछ हद तक कुछ अच्छी संस्थाएं जुड़ती है साथ में और कहती है कि आप अच्छा काम करें, इसलिए हम सपोर्ट करना चाहते हैं इसमें, तो हम इन्हें सपोर्ट कर देते हैं स्मॉल मीडियम साइज बिजनेसेस को जिनका टर्नओवर 500 करोड़ से नीचे है। ज्यादातर लोग 10 करोड़ से नीचे टर्नओवर के हैं, कुछ लोग 10 to 100 करोड़ टर्नओवर के लोग हैं, जिनके कोई भी सवाल हो, मैं बिजनेस कैसे चालू करूं, मेरा GST का इश्यू है, मैं एक्सपोर्ट कैसे करूं, मुझे गवर्नमेंट स्कीम समझते नहीं है, मैं गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस जाकर कैसे बेचूं, इन सभी सवालों के जवाब इस हेल्पलाइन पे दिए जाते हैं। आपको सिंपल चीज करनी है। Some leaders build companies, some leaders build ideas, but there are some leaders who build impact that shapes industries and influences policies. Prashant Girbane is one such leader. As a Director General of Maratha Chamber of Commerce, Industries and Agriculture, he stands at the intersection of public thought, policy and industries. He's a bridge between the government and the enterprise, and between the grassroots MSMEs and national decision makers. But his influence doesn't end there, because Prashant Girbane is a voice that millions read through the insightful columns in the leading Marathi media channels. And today on Talk with Nesh, we are honored to bring you the mind behind the ideas and the voice behind the columns, Mr. Prashant Girbane. Hi sir, thank you so much for joining Talk with Nesh. We are truly excited to have you on the show today. Hey, thank you so much for inviting me. Looking forward to the conversation. Thank you sir. So sir, एक छोटे से self introduction के साथ start करते हैं. So if you could just give a brief introduction to all our viewers today. So I'm Prashant. I work as Director General of MCCIA, that's Maratha Chamber of Commerce, Industries and Agriculture. MCCIA is an industry association and that's been here for 90 years. As an industry association, this has been doing wonderful work. About me, before I joined MCCIA, I used to work in UK for about good 10 years. That meant family and home in UK, but I had to travel to about 20 odd countries for business reasons. And before that, I happened to work with United Nations. And before that, I happened to study. I studied management in Ahmedabad. I studied engineering in Mumbai. And I studied up to my higher secondary in my hometown in Latur in Maharashtra. So that's about me. Great. Thank you so much, sir. You have a fantastic profile and you have traveled to so many countries. So I'm sure you bring with you a lot of different perspectives because you've worked with people across different cultures and geographies. तो आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हम सबको आपसे. And just to get our podcast started, एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है मेरे माइंड में कि MSME जो कि स्मॉल बिजनेसेस हैं, तो उनका डेफिनेशन क्या होता है? एंड हम अक्सर कहते हैं कि जो स्मॉल बिजनेसेस हैं वो हमारे भारत के लाइक दे आर द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी. सही है. किसी भी देश में कई अलग अलग साइज और शेप की कंपनियां होती है. कुछ बहुत बड़ी कंपनियां होती है, जैसे कि इंडिया में है टाटा कंपनी है, बिरलाज की कंपनीज है, अदानीज की कंपनीज है, यू हैव रिलायंस एंड यू हैव मेनी अदर बिग कंपनीज. बट टिपिकली इन एनी कंट्री बॉटम ऑफ द पिरामिड इज वेरी बिग. जो छोटी कंपनियां होती हैं बहुत ज़्यादा होती है नंबर्स में. जैसे कि इंडिया में ये छोटी कंपनियां
लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा है। अब छोटी कंपनियां यानी किसको छोटा और कितना छोटा, ये भी तो एक विचार होता है। तो इसे एमएसएमई एक मिनिस्ट्री है जो कि माइक्रो, स्मॉल और मीडियम साइज की कंपनियां हैं, उसके ऊपर ध्यान देती है। जो भी कंपनी नए डेफिनेशन के अनुसार जिसका भी टर्नओवर 500 करोड़ से नीचे है, वो सभी को एमएसएमई माना जाएगा। अब उसमें भी 500 करोड़ से नीचे है तो मीडियम है, 250 करोड़ से नीचे स्मॉल है, 100 करोड़ से नीचे और 10 करोड़ से नीचे माइक्रो है, 10 से 100 तक स्मॉल। तो ये डेफिनेशन चलती रहेगी, 10 से नीचे माइक्रो और 500 तक आप देखिएगा एमएसएमई की डेफिनेशन है। तो कोई भी कंपनी जो 500 करोड़ तक है, उसका टर्नओवर उससे कम है, उसे एमएसएमई माना जाएगा। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि स्मॉल बिजनेसेस जो कि है, जैसे कि मैंने पहले पूछा था, तो हमारी इकोनॉमी के लिए कितने ज़रूरी है, एंड ऑब्वियसली मैं आज की स्टेट जानना चाहती हूँ, व्हाट इज़ द करंट स्टेट ऑफ स्मॉल बिजनेसेस एंड ऑल्सो फ्यूचर आप कैसे देखते हैं उनका? श्योर। अब जब भी हम इस चर्चा में स्मॉल बताएंगे तो स्मॉल का मतलब एमएसएमईज होगा। वैसे अगर डेफिनेशन के तौर पे देखें तो माइक्रो 10 करोड़ तक है, स्मॉल 10 से माइक्रो 10 तक है, उसके बाद स्मॉल है, उसके बाद मीडियम है और 500 करोड़ तक उसकी लिमिट है। उसका अहमियत क्या है अगर आप देखना चाहो तो 10 करोड़ कंपनियां हैं जो कि स्मॉल बिजनेसेस हैं, और इन कंपनियों का कंट्रीब्यूशन जो जीडीपी में है वो 30% है, यानी 1/3 ऑफ आवर एंटायर इकोनॉमी इज मेड अप बाय दिस कंपनीज। और अगर देखा जाए कि रोजगार बहुत जरूरी है, एम्प्लॉयमेंट बहुत जरूरी है, तो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है हमें ऑफकोर्स लगता है कि बड़ी बड़ी कंपनियां होगी, रिलायंस में बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा, टाटाज में बहुत ज़्यादा होगा, ये सही है। पर अगर हम सभी छोटी कंपनियों को अगर एक साथ इकट्ठा करते हैं एमएसएमईज को, तब पता चलता है कि उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे ज़्यादा है रोजगार निर्मिति में। तो लगभग 20-25 करोड़ जो रोजगार है देश के, वो एमएसएमईज प्रोड्यूस करती है, मैन्युफैक्चरिंग में हो, सर्विसेज में हो या ट्रेडिंग में हो। ये सभी एमएसएमईज मिलकर करोड़ों जॉब ये लोग सस्टेन करते हैं, इसलिए एमएसएमईज की अहमियत बहुत ज़्यादा है। डेफिनेटली, आई मीन आपने जो भी पिक्चर प्रेजेंट करी, दैट डेफिनेटली स्टेट्स की एमएसएमई का बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है हमारी इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए। सो आई वांट टू नाउ shift to your organization. So talk a little bit about MCCIA. आपकी ऑर्गेनाइजेशन करती क्या है, हम ये जानना चाहते हैं। आप अपने व्यूअर्स को बताइए कि आपका रोल क्या है ऑर्गेनाइजेशन में। श्योर। तो एमसीसीआई एक इंडस्ट्री एसोसिएशन है, मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर एमसीसीआई का नाम है। ये 91 ईयर ओल्ड इंस्टीट्यूशन है। भारत की स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 में हुई। उसके लगभग 13 साल पहले इस संस्था की नींव रखी गई है और ये संस्था तब से काम कर रही है। संस्था का उद्देश्य एक 3 बड़े उद्देश्य है इसके। पहला उद्देश्य ये है कि एडवोकेसी करे, यानी जब लगता है कि एक आध चीज़ उद्योग के लिए सही नहीं है, तब सरकार के पास जाकर बताया जाए कि ये सही नहीं है उद्योग के लिए। तो उदाहरण के तौर पर अगर आप देखेंगे तो जीएसटी में क्या हो रहा है, डिलेड पेमेंट के इश्यूज होते हैं स्मॉल बिजनेसेस के। स्मॉल बिजनेसेस को टेक्नोलॉजी एक्सेस नहीं होती, स्मॉल बिजनेसेस को बाहर किसी देश जाकर एक्सपोर्ट करने के लिए सपोर्ट चाहिए। ये सब चीज़ें जो हैं सभी स्मॉल बिजनेसेस से सुना जाएगा और उसके बाद एक रिप्रेजेंटेशन लिखा जाएगा और सरकार के साथ बार बार वार्तालाप होगा ताकि उसके ऊपर कुछ सोल्यूशन निकले। पर इसका मतलब ये नहीं कि किसी एक उद्योजक के लिए ये काम किया जाए, वो कभी नहीं होगा। एडवोकेसी होगी तो इंडस्ट्री के लिए होगी, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए नहीं होगी। ठीक है, मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, एडवोकेसी होगी पर इंडस्ट्री के लिए होगी, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए नहीं होगी। और कई बार ये भी होता है फिर सरकार से ही एक बार इन्विटेशन आता है कि हम एक नई पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल ईवी पॉलिसी, तो आपका ओपिनियन क्या है? क्योंकि उन्हें भी सभी लोगों का ओपिनियन जानना है और ऐसी एक पॉलिसी बनानी है ताकि वो पॉलिसी शाश्वत रूप से, सस्टेनेबल रूप से चलती रहे। तो उसके ऊपर भी हम अपना ओपिनियन देते हैं। तो ये रही पहली बात एडवोकेसी की। दूसरी बात आती है कैपेबिलिटी बिल्डिंग की। कई सारी कंपनियां जो होती हैं, छोटी कंपनियां होती हैं, जैसे एमएसएमईज होती हैं, कई लोगों का तो टर्नओवर 10 करोड़ से भी छोटा होगा, उनके पास एचआर डिपार्टमेंट नहीं होगा, उनके पास लर्निंग ट्रेनिंग का डिपार्टमेंट नहीं होगा। तब वो क्या करें, वो कैसे अपनी लर्निंग और डेवलपमेंट की जो नीड्स हैं उसके ऊपर काम करें। उनके लोगों को भी उनकी कैपेबिलिटी बिल्ड होनी चाहिए। तो उसके लिए
MCCI कई सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है। फॉर एग्जाम्पल, पिछले साल हमने 13,000 अलग अलग MSMEs, 13,000 अलग अलग छोटी कंपनियों के लिए अलग अलग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए। तब कई बार प्रोग्राम होंगे कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे होगा, सबसे बेसिक। कई बार होगा कि हमें फिनांस जानना है तो उसके लिए। कई बार होगा हमें GST के लिए जो चैलेंजेस है उसके ऊपर। फिर कुछ लोग कहेंगे हमें एक्सपोर्ट के ऊपर चाहिए। फिर कुछ लोग कहेंगे हमें गवर्नमेंट की स्कीम समझनी है, उसके लिए चाहिए। तो अलग अलग एरियाज के ऊपर ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाएंगे ताकि ये जो छोटी कंपनियां हैं जिनके पास HR डिपार्टमेंट नहीं है, जिसके पास लर्निंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट नहीं है, वो सब इकट्ठा आकर अपना लर्निंग कर सके, अपना डेवलपमेंट कर सके, उनके लोग और अच्छे बने ताकि उनकी कंपनी और अच्छी बने, ताकि वो और ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाए हमारे नेशनल इकोनॉमी में। ये रहा दूसरा गोल कैपेबिलिटी बिल्डिंग का। तीसरा गोल बहुत ही सिंपल सा है कि लोग नेटवर्क कर पाए एक दूसरे से। अकेला अकेला अलग होता है, बट एक बार अगर साथ मिल जाए तो बहुत बड़ी ताकत बनती है। तो ये जरूरी है इसलिए कि ये सभी लोग एक साथ आकर सोचें। कई बार क्या होता है कि मैं एक कोट सूट में आकर कुछ बोल दूं, उससे अच्छा लोग एक दूसरे की भाषा बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, एक दूसरे का दुख, एक दूसरे की तकलीफें बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। ताकि एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करें, ये लोग साथ में आए। और एक उद्योजक कह रहा है कि भाई मेरा बिजनेस 5 करोड़ का है, मैंने 5 करोड़ से 50 करोड़ का जब 20 साल में लेके आया तो मुझे ये 3-4 तकलीफें आई, तो आप इसे संभल के रहिएगा। अब ये जो चीज़ है बहुत आसानी से समझती है लोगों को, क्योंकि उनकी भाषा में बात हो रही है। इसलिए ऐसा नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म बनाना ये भी अच्छी बात है, ये भी हम करते हैं। इसके साथ ही और एक नेटवर्किंग होती है। कई सारे बार मंत्री महोदय आते हैं, या तो सचिव आते हैं, सेक्रेटरी और जो सीनियर ऑफिसर है गवर्नमेंट के, या तो कई देशों के एम्बेसडर्स और कौंसल जनरल आते हैं। उनको उद्योगों से बात करनी होती है। अब वो हर किसी के ऑफिस जा नहीं सकते, तो उन्हें एक न्यूट्रल सा प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। तो वो चैम्बर में आते हैं, MCCI में आते हैं। पिछले साल जैसे कि 20 अलग अलग देशों के एम्बेसडर्स और कौंसल जनरल आ चुके हैं। और फिर 30, 40, 50 लोग आते हैं, जैसे कि कोई आया है रशिया से, कोई इजराइल से, कोई यूरोप से, कोई अमेरिका से, ये सभी आ चुके हैं, न्यूजीलैंड से। तो इनके साथ 20, 25, 30 बिजनेस लोग आ जाएंगे और कहेंगे कि भाई हमारी आपके देश के साथ जो बिजनेस करनी है उसमें क्या चैलेंजेस हैं और उसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो ये भी होता है। कई बार मंत्री महोदय आते हैं, कहते हैं कि हमारी जो सरकार है, राज्य में हो, देश में हो, कहीं भी हो, क्या अच्छी चीज़ें कर रही हैं, वो लोगों को समझना भी जरूरी है। उन्हें ये भी समझना जरूरी है कि क्या ठीक नहीं चल रहा है, ये भी हम उनको बता पाते हैं। ये एक सचिव महोदय के साथ होती है। तो MCCI करता क्या है? 3 चीजें, एक एडवोकेसी, दूसरी कैपेबिलिटी बिल्डिंग और तीसरी नेटवर्किंग के लिए सपोर्ट करना, प्लेटफॉर्म देना। इन सब में मेरा रोल है डायरेक्टर जनरल का। आई एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ दिस ऑफिस। मेंबर्स की तरफ से एक प्रेसिडेंट चुन लिए जाते हैं, जो कि इस साल संजय किर्लोस्कर जी हैं। 2 साल के लिए प्रेसिडेंट चुने जाते हैं, हर 2 साल में एक प्रेसिडेंट होते हैं। और जो डायरेक्टर जनरल का जॉब होता है वो ऑफिस जॉब होता है, जो कि ऑफिस की पूरी एक्टिविटीज को हेड करना होता है। एंड द डायरेक्टर जनरल रिपोर्ट्स टू द बोर्ड विच इज चेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट, एंड प्रेसिडेंट वुड अटेंड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड एंड गिव द डायरेक्शंस थ्रू द बोर्ड मीटिंग्स एंड अदरवाइज एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो ये रही मेरी जॉब की प्रोफाइल। ग्रेट, थैंक यू सो मच सर। आपने बहुत ही सिंपली एंड बहुत ही ब्यूटीफुली समझाया। स्पेशली आपने वो जो 3 गोल्स के बारे में बताया आपके ऑर्गेनाइजेशन के, एंड वील टॉक अ लिटिल बिट मोर अबाउट इट। लेट्स डाइव डीप इनटू दैट। बट लेट्स स्टार्ट विद टेक। आपने बताया कि टेक फॉर स्मॉल बिजनेसेस, उसमें आप बहुत सपोर्ट करते हैं, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली गिवन हाउ द वर्ल्ड इज शिफ्टिंग नाउ। जो AI आ गया है और उसने सब कुछ ही बदल दिया है। तो आप इसके बारे में बताइए, AI से रिलेटेड अगर आपने कुछ इनिशिएटिव्स हैं, या फिर हाउ यू आर हेल्पिंग स्मॉल बिजनेसेस स्पेशली इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। श्योर। जैसे मैंने बताया कि हमारे संस्था के या किसी भी इंडस्ट्री एसोसिएशन के 3 गोल होने चाहिए या होते हैं। पहला एडवोकेसी, दूसरा कैपेबिलिटी बिल्डिंग, तीसरा नेटवर्किंग। अब कैपेबिलिटी बिल्डिंग में अलग अलग एरिया में लोगों को अपनी कैपेबिलिटी बढ़ानी है। अब उसमें से एक एरिया है टेक्नोलॉजी पर कैपेबिलिटी बढ़ानी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी नई चीज़ है। हर किसी के पास एक चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर CTO नहीं होता है। छोटी कंपनी के पास भी ना, वो लोग छोटी कंपनी वाला खुद आके कहता है भाई हम तो ना चेयरमैन तो चपरासी हम अकेले ही हैं, अब हम ही है CTO, हम ही है CHRO, आप बताइएगा हमें क्या करना। या तो हम 7, 8, 10 लोगों की कंपनी है, बताइए हम क्या कर सकते हैं।
दूसरी बात, कई लोग आकर हमसे कहने लगे कि भाई एआई बहुत सुना हुआ है, अब बताइए इसमें हम क्या करें। अब इस संस्था का एक अनुभव रहा है, जब जीएसटी आया तब हमने जीएसटी में हेल्प की, सैकड़ों ऐसे उद्यमियों की हेल्प की कि जीएसटी क्या है समझने में। अभी लेबर कोड आ रहा है, वो समझने में हेल्प कर रहे हैं। वैसे हमने एआई को देखा है। अब एआई जो है, बड़ी कंपनियां हैं, वो अहेड ऑफ द कर्व है, क्योंकि उनके पास सभी रिसोर्सेस हैं, उनके पास बेस्ट ऑफ द इंजीनियर्स हैं। अब छोटी कंपनियां क्या करें? अगर मेरे पास 5-6 ही लोग हैं तो मैं क्या करूं इसके बारे में? ये सवाल था कई सारे लोगों के जहन में। तो लास्ट ईयर हमने क्या किया कि 2 या 3 हमारे फेलोज है, यंग फेलोज, यंग एसोसिएट्स हैं हमारे, वे लोग 12 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में गए, महाराष्ट्र के, भारत के 12 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में गए, और उन्होंने 1000 लोगों से चर्चा की, 1000 उद्यमियों से चर्चा की, और उनको बताया कि एआई क्या होता है और आप एआई से क्या कर सकते हैं। उसमें से 100 लोगों ने कि हमने केस स्टडीज लिखी हुई है, आपको मैं रिपोर्ट भेज दूंगा, अगर आप चाहें तो उसकी लिंक जरूर लोगों तक पहुंचा दें। ये लोग कैसे हैं, जैसे कि एक उदाहरण उसका है कि कोई अपने छोटे से शहर में अपना एक छोटा सा उनका उद्योग है, और उद्योग उनका क्या है कि उनका तबेला है गाय भैंस का, उनका वही बिजनेस है। अब उस बिजनेस में उन्हें जानना है कि प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाए इन टर्म्स ऑफ मिल्क प्रोडक्शन। तब वे रिसर्च कर पाए कि किस तरह का फीड इंडिया में, इंडियन एनवायरनमेंट को सूटेबल है, जो कि उनके काउस को, बफेलोस को दिया जाए, उनके गाय भैंस को दिया जाए, ताकि उनकी मिल्क प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। ये उसमें केस स्टडी है। तो उन्होंने खुद लिखा हुआ है कि सिंपल से टूल, जैसे कि आप जेमिनाई, चैट जीपीटी जो भी यूज करें, आपको जो पसंद है वो यूज करके भी सिंपल सा प्रॉम्प्ट करा के क्या इनपुट उन्हें मिला और उन्होंने क्या यूज किया। अब दूसरा एक उदाहरण है, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास कस्टमर्स बहुत ज्यादा है, बट उन्होंने अपना डेटा भी फीड नहीं किया हुआ था, और उन्हें लगा कि ऐसा ऐप अगर डेवलप करना है तो बहुत पैसे लगेंगे। किसी को पूछा कि 3-4 लाख रुपए लगेगा, गांव में भी 2-3 लाख रुपए लगेगा कुछ। तब हमने उन्हें ऐप शीट कैसी होती है एक्सप्लेन कर दिए। वो बनाने के लिए लगे 10-15 मिनट, और वो यूज करते हैं सीधा सा उनका इनपुट लेने के लिए। अब उनके पास पूरा डेटा है, और डेटा देख कर तय कर पाते हैं कि क्या करना है इस पे। तब ये ऐसे 100 अलग अलग उदाहरण हैं, जो कि आपके पास मैं लिंक दे रहा हूं, आप पब्लिश करेंगे तो लोगों तक पहुंच जाएगा। इन लोगों ने कहा कि ये तो हेल्पफुल हुआ, पर आप बताइए, हम अभी हमारे पास और प्रॉब्लम है, क्योंकि ये तो इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है। तब हमने एक एआई स्टूडियो चालू किया हुआ है, जिसका एक नंबर है। आप अगर एक लघु मध्यम उद्यमी हो तो आप उसके ऊपर फोन कर सकते हैं, या तो उन्हें ईमेल कर सकते हैं, या तो उन्हें व्हाट्सएप कर सकते हैं, या तो सिंपल फोन मिस कॉल दे सकते हैं। उसके ऊपर आपको फोन करेंगे और आपका 1 घंटे का 1-on-1 इंटरेक्शन सेशन रखेंगे वो ऑनलाइन, ताकि आपकी जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम है वो आप पूछ पाएंगे कि मैं एआई कैसे यूज कर सकता हूं, कर सकती हूं, और उसके ऊपर 1 घंटे का वार्तालाप होगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास हर क्वेश्चन का जवाब है, नहीं है, पर कम से कम 10 में से 9 क्वेश्चंस का तो जवाब आज तक हम दे पाए हैं। तो अगर ठीक ही है, तो इस तरह से लघु मध्यम उद्यमियों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैसे उपयोग करना चाहिए, ये उन्हें एमएसएमई एआई स्टूडियो के माध्यम से ऑनलाइन फ्री विनामूल्य बताया जाता है। और ये उस एक्सपीरियंस के ऊपर बिल्ड है, जो कि हमारा लघु मध्यम उद्यमी जो है, स्मॉल बिजनेसेस जो है, उनके साथ हमारा जो इंटरेक्शन है उसके ऊपर ये बेस्ड है। ग्रेट, अमेजिंग। आपने ये जो केस स्टडीज़ के बारे में बताया, आई विल डेफिनेटली लिंक इट अप इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर एवरीबडी टू सी, बिकॉज ये एआई यूज़ करना डेफिनेटली एक बड़ा गेम चेंजर होने वाला है सारे स्मॉल बिजनेसेस के लिए। And fantastic work that you are doing along with the organization there. I now want to talk about any other support that you're providing. मतलब टेक एक आपने बताया, इसके अलावा भी कोई और सपोर्ट आप प्रोवाइड कर रहे हैं? फॉर एग्जांपल, आई डोंट नो, स्केलिंग के लिए उनको अगर अपना बिजनेस एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में एक और ब्रांच खोलनी है, नेशनली या फिर ग्लोबली, उससे रिलेटेड भी कुछ है? जरूर। हमारी और एक सुविधा है जिसे हम कहते हैं एमएसएमई हेल्पलाइन। अब हेल्पलाइन का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आप कोई भी लघु मध्यम उद्यमी है, एमएसएमई है, स्मॉल बिजनेस है,
जिसका बिजनेस 10 करोड़ हो, 20 करोड़ हो, 50, 100 करोड़ हो, 500 करोड़ तक हो, तो वे लोग, उनको अलग अलग दिक्कतें आती हैं। कुछ लोगों का तो बेसिक सवाल होता है, मेरे पास 25 लाख पड़े हुए हैं, अब मैंने अपने बेटे को कुछ धंधा लगा के देना है, पता ये क्या करें हम, शुरुआत कहाँ से। कुछ लोग कहेंगे मैंने अभी एक्सपोर्ट चालू किया है, पर मुझे पता नहीं है कि इस एजेंसी के ऊपर विश्वास रखना चाहिए या नहीं चाहिए। ऐसे बेसिक सवाल होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अगर उसने पैसा मेरा नहीं दिया एक्सपोर्ट करने के बाद वो दूसरे देश वाला, तब मैं क्या करूं। कुछ लोग कहेंगे कि मुझे एआई यूज करना है तो कैसे करूं। कुछ और लोग कहेंगे कि मेरा बिजनेस अभी 25 करोड़ का हो गया है, कौन सी गवर्नमेंट स्कीम मेरे लिए एप्लीकेबल होगी। कोई और कहेगा मुझे गवर्नमेंट को कुछ बेचना है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे जाके, मैंने सुना हुआ है पर कैसे किया जाए एग्जैक्टली। इन सब क्वेश्चंस के जवाब एमएसएमई हेल्पलाइन देता है। आज तक पिछले 1 साल में पायलट हमारा पेज चल रहा है, उसमें लगभग 3000 अलग अलग छोटे उद्योगों ने 50 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, भारत के 50 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, ज्यादातर महाराष्ट्र के हैं क्योंकि हम महाराष्ट्र में बेस्ड हैं, बट 13 अलग अलग राज्यों से, भारत के 50 अलग अलग जिलों से 3000 लघु मध्यम उद्यमियों ने ये सवाल पूछे हुए हैं। अब क्या होता है, कुछ सवालों का जवाब हमारे पास होगा, हम इमीडिएटली दे देंगे। जिस चीज का जवाब हमारे पास नहीं है, उसके लिए हम उन्हें कहेंगे कि हमारे पास 60 to 70 एक्सपर्ट्स हैं, आप 24 घंटे का समय दें हमें, उसमें हम आपको उन एक्सपर्ट से कनेक्ट करा देते हैं। 24 घंटे के समय में हम आपको यानी स्मॉल बिजनेस को उस एक्सपर्ट के साथ कनेक्ट करा देते हैं। आप वीडियो कॉल कर सकते हैं या फोन पे ऑडियो कॉल कर सकते हैं। उसमें आप, वो एक्सपर्ट और हम 3 लोग एक साथ 1 घंटा चर्चा करेंगे, और आपकी 1 घंटा भर, और आपकी जो भी डिटेल्स हैं आप 1 घंटा भर आपसे उनसे चर्चा करके पूछ सकते हैं। वो एक्सपर्ट ऐसे कई सारे स्मॉल बिजनेस के साथ चर्चा कर चुके हैं, तो आपको एक्सपर्ट एडवाइस दे पाएंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास हर क्वेश्चन का जवाब है, पर लगभग 90% ऑफ द टाइम हमारे पास जवाब है पिछले 3000 कॉल से। तो उद्देश्य यही है कि जितना है वो तो हम बांट पाए, और ये भी सुविधा पूरी की पूरी विनामूल्य है, इसमें कोई चार्ज नहीं है। ये इसलिए दिया जा रहा है कि एमसीसीआई सोचता है, हमारा बोर्ड सोचता है कि हमारा ये उद्देश्य है कि हम लघु मध्यम उद्यमियों की सेवा करें, और इसमें एमसीसीआई के खुद के रिसोर्सेज लगे हुए हैं, और कुछ हद तक कुछ अच्छी संस्थाएं जुड़ती है साथ में और कहती है कि आप अच्छा काम करें, इसलिए हम सपोर्ट करना चाहते हैं इसमें, तो हम इन्हें सपोर्ट कर देते हैं स्मॉल मीडियम साइज बिजनेसेस को, जिनका टर्नओवर 500 करोड़ से नीचे है। ज्यादातर लोग 10 करोड़ से नीचे टर्नओवर के हैं, कुछ लोग 10 to 100 करोड़ टर्नओवर के लोग हैं, जिनके कोई भी सवाल हो, मैं बिजनेस कैसे चालू करूं, मेरा जीएसटी का इश्यू है, मैं एक्सपोर्ट कैसे करूं, मुझे गवर्नमेंट स्कीम समझते नहीं है, मैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जाकर कैसे बेचूं, इन सभी सवालों के जवाब इस हेल्पलाइन पे दिए जाते हैं। आपको सिंपल चीज करनी है, ये जो नंबर दिया जा रहा है उस नंबर पे फोन करना है और उन्हें बोलना है ये मेरा प्रॉब्लम है। हर चीज जो चर्चा है, उन चर्चा के ऊपर, चर्चा क्या हुई है, सोल्यूशन क्या था, ये आपको ईमेल भी किया जाएगा, व्हाट्सएप भी किया जाएगा अगर आपके पास व्हाट्सएप। तो ये है हेल्पलाइन। या आई थिंक दिस इज़ ग्रेट वर्क जो आपने हेल्पलाइन का बताया, इससे काफ़ी लोगों को बहुत मदद होगी। हम ये इसका नंबर और इसके लिंक भी वेबसाइट के सबके साथ शेयर करेंगे। सर, जो आपने तीसरी गोल की बात करी थी विच वाज नेटवर्किंग, राइट? सो उसके बारे में थोड़ा और बात करते हैं। तो नेटवर्किंग का मैंने देखा था इंटरनेशनल वो पुणे बिजनेस समिट जो हुआ था, क्या वो हर साल ही होता है? क्योंकि मुझे वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि उसमें आपने जो मैंने वीडियो देखा था उसमें आपने बोला कि 100 से भी ज़्यादा लोगों ने, 200 या 300 लोगों ने आई थिंक पार्टिसिपेट किया था, अलग अलग कंट्रीज़ के लोग आए थे। सो आई थिंक दैट इज़ अ फैंटास्टिक नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। सो February 9 को 2026 में पुणे इंटरनेशनल बिजनेस समिट होगा। पुणे इंटरनेशनल बिजनेस समिट ऐसी एक समिट है जहां पर हर तरह के इंटरनेशनल बिजनेस स्टेक होल्डर्स आते हैं। जैसे कि लगभग 21 देशों के काउंसिल जनरल आएंगे, उन देशों के डेलीगेशंस आएंगे, 100 से भी ज़्यादा कंपनियां आएंगी, और वो कंपनियां सिर्फ सेल करने के लिए नहीं, कई सारी कंपनियां बाय करने के लिए आ रही, खरीदने के लिए आ रही है। और ये सिलसिला पिछले कई सालों से चल रहा है और उसकी सक्सेस स्टोरीज कई सारी है। 3 साल पहले किसी कंपनी के लोग, किसी देश के लोग आए थे, उनका आज बहुत बढ़िया से बिजनेस चल रहा।
तो ऐसे बहुत सारे लोग वहां पर आएंगे जो कि आपसे खरीदना भी चाहते हैं। कुछ लोग होंगे जरूर जो बेचना चाहते हैं, कुछ लोग होंगे जरूर जो पार्टनरशिप करना चाहते हैं, बट अलग अलग तरीके से इंटरेक्शन होगी। महाराष्ट्र से और महाराष्ट्र के बाहर से लगभग 400 बिजनेस डेलीगेट्स आते हैं यहाँ पर, और देश के बाहर से लगभग 100 डेलीगेट्स आते हैं यहाँ पर, एक दूसरे के साथ चर्चा करके बिजनेस आपका कितना कैसा ग्रो करे ये देखने के लिए। और सालों साल ये नंबर बढ़ते जा रहा है। तो ये होगा 9 फरवरी में। उसकी इंफॉर्मेशन भी हम आप तक पहुंचा देंगे ताकि जो भी इसमें इंटरेस्टेड हो वे लोग भी आकर पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और इसके साथ ही कई सारे हम डेलीगेशंस लेकर जाते हैं अलग अलग देशों को। जैसे कि कुछ लोग जानना चाहते हैं कि जापान के साथ बिजनेस कैसा करें। बहुत टफ होता है क्योंकि जब तक हम आपसे बात करें, जापानीज लोग बहुत टाइम ले लेते हैं बिजनेस करने के लिए, अनलाइक इंटरेक्शन विद लेट्स से वेस्टर्न वर्ल्ड। आप भी जापान रह चुके हैं तो आप समझ सकते हैं शायद। तो इसलिए उन्हें वीडियो कॉल के ऊपर पहले चर्चा होगी, उसके बाद उन्हें जापान लेके जाएंगे, वहाँ पर लोगों के साथ चर्चा होगी, फिर उनके फॉलोअप कॉल वीडियो कॉल पर होंगे। ऐसे जापान, इंडोनेशिया, यूएसए, जर्मनी, यूके, दुबई, ओमान, पिछले 2 साल में ही इन अलग अलग देशों का हम डेलीगेशंस लेकर जा चुके हैं। और हर साल 5 या 6 कंट्री में लगभग 100-150 बिजनेस पीपल हम लेकर जाते हैं ताकि उनकी इंट्रैक्शंस को पाएं। और इन सभी चीज़ों में एमसीसीआई को ये हमारा बिजनेस नहीं है, इसलिए एमसीसीआई डजंट हैव टू मेक मनी ऑन दिस। We look at all the expenses that are incurred, divide between number of people who are attending it, and that's end of it. So ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है नेटवर्किंग में। बाहर के लोग हमारे देश में आ जाएं और हम भी अपने लोगों को बाहर देश लेके जाएं ताकि वो भी कुछ एक्सपीरियंस कर पाएं कि बाहर की देशों के साथ कैसे बिजनेस किया जाए। एग्जैक्टली, आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हम जब जाके देखते हैं लाइक ऑन द ग्राउंड तो हमें समझ में आता है कि क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। स्पेशली लाइक जैसे आप जापान की बात कर रहे थे, वेरी यूनिक मार्केट, सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू गो एंड लुक। And I want to now talk a little bit about policy contribution. आपने mention किया था जब earlier in one of the goals कि policy contribution में भी बहुत active है आपकी organization. So I want to talk about that कि क्या ऐसे आपके contributions रहे हैं अब तक, if you can share a little bit with some examples. Sure. जैसे हमने चर्चा की इंडस्ट्री एसोसिएशन कोई भी उनके 3 प्रमुख गोल हैं। हमने अभी भी नेटवर्किंग पे चर्चा की, उसके पहले हमने कैपेबिलिटी बिल्डिंग पे चर्चा की, और एक है एडवोकेसी, तीसरा गोल। अब एडवोकेसी की चर्चा करते हैं। एडवोकेसी यानी पब्लिक पॉलिसी के ऊपर इन्फ्लुएंस करना। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि कोई भी अगर चीज़ हमें चाहिए, जैसे कि हम सोचते हैं बहुत बार यार हमारे रास्ते खराब है, करेगा कौन? सरकार। हम सोचते हैं हमारे पास इंडस्ट्री ज़्यादा चाहिए, लाएगा कौन? सरकार। हमारा नेटवर्किंग ठीक नहीं है, कनेक्टिविटी ठीक नहीं है, करेगा कौन? ठीक, सरकार। तो किसी भी देश में स्वाभाविक है कि सरकार सबसे ज्यादा इंपैक्ट कर सकती है, क्योंकि पॉलिसी बनाना ये सरकार का काम है किसी भी देश में। तो उसे पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करना हम सभी का काम है। अब ये इन्फ्लुएंस जो शब्द है ना, ये मिसयूज्ड है, अनफॉर्चुनेटली अब्यूज्ड है। इन्फ्लुएंस है ना, हम यही हमेशा यही सोचते हैं कि उसके खुद के व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, पर जरूरी नहीं है कि इन्फ्लुएंस सिर्फ व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए किया जा रहा है। पब्लिक गुड के लिए जो इन्फ्लुएंस किया जाए, ये उद्देश्य है इंडस्ट्री एसोसिएशन का, जैसे कि एमसीसीआई। इसका मतलब ये है जब भी पॉलिसी रिकमेंडेशन होगा वो इंडस्ट्री के लिए होगा, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए नहीं। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, जब भी पॉलिसी रिकमेंडेशन होगा तो इंडस्ट्री के लिए होगा, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए नहीं। जैसे कि अगर बताया जा रहा है कि विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक इंडस्ट्रियल जोन होना चाहिए, तो किसी एक वैयक्तिक विमेन एंटरप्रेन्योर की बात नहीं हो रही है, किसी एक्स या वाई को हेल्प करने की। ये बात हो रही है कि विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक सेपरेट इंडस्ट्रियल जोन होना चाहिए, ताकि उनको जो सुविधाएं लगती हैं वो सभी सुविधाएं वहां पर पर्याप्त की जाए। तो ये डिफरेंस जरूरी है। अब आते हैं बात कि किस तरह की पॉलिसी पर काम होता है। आई टेक यू बैक ऑल द वे टू 1934। जब जमाना था हम स्वतंत्र नहीं थे, वी वर अ कॉलोनी। उन दिनों में भी लिखा जाता था, जो मेरे प्रीडिसेसर्स हुआ करते थे वे लिखा करते थे, उनकी पुस्तिका अभी भी उपलब्ध है, कि क्या जरूरत है पुणे को
हमारे देश को इंडिपेंडेंस की जरूरत है, बट उसके साथ साथ आर्थिक जो सपोर्ट चाहिए वो भी जरूरी है। उसके लिए क्या करना चाहिए? तब एक बात आ गई कि बैंक होनी चाहिए। सबसे पहला पॉलिसी इंटरवेंशन 1934 का है, एमसीसीआई का। बैंक होनी चाहिए, क्योंकि लोगों को क्रेडिट नहीं मिलेगा तो उद्योग कैसे चलेगा। तो 1934 में जो काम किया गया उसका एक आउटकम ये है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जन्म हुआ। आज भी अगर आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र की वेबसाइट पर जाकर देखते हैं तो आपको दिखेगा कि एमसीसीआई की शुरुआत जो पहल थी उससे शुरुआत होती है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। फिर आते हैं फास्ट फॉरवर्ड, क्योंकि पॉडकास्ट में कई सारे घंटों का तो समय नहीं होता, तो उसको फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। तो 1960 में जंप करते हैं सीधा 1934 से, जब अनफॉर्चुनेटली एक बाढ़ आ गई पुणे में। जब बाढ़ आ गई तो बहुत सारे उद्योगों को नुकसान हुआ, 5-6 डैम ब्रोक। तब बात कर ली गई कि लोगों को फिर से एक बार क्रेडिट, नॉर्मल नहीं इमरजेंसी क्रेडिट की आवश्यकता है। तब इमरजेंसी क्रेडिट के लिए कई सारे लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने एक पूंजी जमा की और कही कि हम बैंक को कहते हैं आप इनको लोन दे दीजिए, अगर नहीं हुआ तो ये पूंजी में से कुछ दिया जाएगा। इमरजेंसी गारंटी की गई और बैंक को भी एनकरेज किया गया। उससे बहुत सारे बिजनेसेस सस्टेन हो चुके। बिजनेस को सस्टेन करना यानी जो एम्प्लॉयज काम करते हैं उनको सस्टेन करना, उनको सस्टेन करना यानी उनकी फैमिलीज को सस्टेन करना, यानी कंजम्पशन को सस्टेन करना, यानी पूरे साइकिल जो चल रही है, जो पूरा सिटी, राज्य, देश चला रहा है, उसको सस्टेन करना। तो वो किया है। कोविड के दरमियान जो इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी स्कीम हुई वो कुछ लगभग ऐसी ही थी। तो एमसीसीआई ने शुरुआत की 1960 में। तब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 70s 80s में, जमाना ये था कि इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बनाने थे, तो कई सारे क्लस्टर्स एमसीसीआई ने बनाने में पहल की। फिर बात आई कि इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बन गए, फिजिकली लोग आ गए, वो अभी कर पा रहे हैं खुद। अब बात आती है कि ऐसे कुछ सुविधाएं चाहिए होती है, ऐसे कुछ इक्विपमेंट चाहिए, जैसे कि 10 करोड़ का इक्विपमेंट चाहिए 3D मेटल प्रिंटर, मेटल प्रिंटिंग, या तो 3-4 करोड़ का प्लास्टिक जो पॉलीमर वाला मेटल 3D प्रिंटर चाहिए। हर कोई खरीद नहीं सकता, तो इनोवेशन कैसे करें, रिसर्च कैसे करें? तो हम कहते हैं कि भाई ये काम करते हैं, हम लोग ना एक इस सब चीज़ का एक क्लस्टर बनाते हैं। अगर आप ऑटो कंपोनेंट वाले छोटे उद्योग है तो उसको ऑटो क्लस्टर कहा गया, और हजारों जो लघु मध्यम उद्यमी हैं उनको इससे मदद हो रही है, क्योंकि वे खुद सिर्फ पे एज यू गो करते हैं। उनको पूरा का पूरा 5-10 करोड़ का मशीन खरीदने की जरूरत नहीं है। वही चीज़ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में हो गई, जिसके लिए आपको अभी बाहरी देश या तो औरंगाबाद तक जाने की जरूरत नहीं है, बैंगलोर तक जाने की जरूरत नहीं है। ये पूरी सुविधा आपको पुणे में ही मिलेगी। उसके साथ साथ अभी ड्रोन की बात चल रही है, तो उसके ऊपर हम ड्रोन का क्लस्टर बना रहे हैं। फूड प्रोसेसिंग बहुत चलता है, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए उसकी बहुत मदद होती है। स्पेशली वुमेन एंटरप्रेन्योर ने बहुत कुछ करना है, सिर्फ फूड प्रोसेसिंग नहीं करना है, बट फूड प्रोसेसिंग में फिलहाल बहुत है वुमेन एंटरप्रेन्योर, इसलिए बात हो रही है। तो उनके लिए एक मॉडर्न किचन बनाया जा रहा है ताकि वहाँ पर वो एक्सपेरिमेंटेशन कर पाएँ, राइट? तो वो एक क्लस्टर बन रहा है। तो ये रही कुछ इनिशिएटिव पॉलिसी पे। फिर दूसरा होता है जैसे कि ईवी पॉलिसी बन गई, तो उनके जो आला ऑफिसर हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, वे आए हुए थे। उन्होंने कहा कि मुझे आप लोगों से सुनना है कि पिछले पॉलिसी में क्या अच्छा चला, क्या नहीं चला। तो उन्हें 20-25 लोग साथ में मिलकर उन्हें बता पाए क्या चल रहा है क्या नहीं। कई बार ये होता है कि हम चीज़ें बात करते हैं, जैसे कि पुणे में हम बेस्ड हैं इसलिए कहते हैं कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट होना चाहिए, अब तक नहीं हुआ है, पर इसका मतलब ये नहीं हम रुके रहेंगे, बात तो करते रहेंगे उसकी। हमें लगता है महाराष्ट्र में कुछ होना चाहिए, वो बात करेंगे। हमें लगता है देश में कुछ होना चाहिए, उसकी बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब हम एमएसएमईज की बात करते हैं, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डिलेड पेमेंट की, क्योंकि बड़ी कंपनियां टाइम पर पैसा नहीं देती। अब उसके लिए हम सरकार को रेकमेंड कर रहे हैं कई दिनों से, कई सालों से, कई महीनों से, कई सालों से अभी, कि आप जो जीएसटी पोर्टल है वो जीएसटी पोर्टल को लिंक करिए ट्रेड्स पोर्टल से। ट्रेड्स पोर्टल यानी ट्रेड डिस्काउंटिंग करता है वो, ताकि हर इनवॉइस अवेलेबल होगी ट्रेड डिस्काउंटिंग के लिए, ताकि लोगों को टाइम पर पैसा मिले। अब तक नहीं हुआ है, तो हम उसका फिर से फॉलोअप कर रहे हैं। तो पॉलिसी में क्या है, कुछ चीजें होती हैं, कुछ चीजों के लिए समय लगता है, और कुछ चीजें बहुत देर से होती है या तो होती भी नहीं है। तो ये बहुत पेशेंस का काम है, और इंडस्ट्री के लिए करना, इंडस्ट्रियल्स के लिए नहीं करना है, ये उसकी अहम बात है। और पेशेंस अगर रखेंगे तो कई सारे चेंजेस हम ला पाएंगे। और जैसे मैं शुरुआत की थी, बड़े से बड़े चेंजेस अगर करने हैं तो सरकार ही कर सकती है, क्योंकि पॉलिसी बनाना सरकार का काम है। इसलिए सरकार के साथ कनेक्ट रख के उनसे पॉलिसी बनवाना इन अ न्यूट्रल प्लेटफॉर्म से, ये जरूरी क्या है, और ये चलते रहेगा। वाओ,
ग्रेट थिंग्स दैट यू मेंशन्ड। एक्चुअली काफ़ी बार हमें नहीं पता होता कि एमसीसीआई 1934 से उनका इंटरवेंशन स्टार्ट हुआ है एंड अब तक इतना सारा काम आपने आपकी संस्था ने किया है। क्योंकि हम पॉलिसी के बारे में बात कर रहे हैं, एक और प्रश्न जो मेरे मन में आता है कि आपके अनुसार ऐसी कोई विजनरी पॉलिसी है जिसके होने से भारत को, ऑफ कोर्स महाराष्ट्र को एंड भारत को बहुत बेनिफिट होगा? श्योर। मेरे ख्याल से इससे दो तीन चीज़ें हैं, और कुछ चीज़ों पर काम चल भी रहा है। एंड देन आई कम टू वन फाइनल। फॉर एग्जाम्पल, अगर FTA जो हमारे हैं, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, अगर वो जल्दी हो जाए कई सारे देशों के साथ में, तब हमें बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि एक्सपोर्ट्स में उसका बढ़ावा आएगा। 50% ऑफ एक्सपोर्ट्स, ऑलमोस्ट 50% ऑफ एक्सपोर्ट्स आर डन बाय MSMEs, तो उसका MSMEs को बहुत सपोर्ट होगा, उसका सभी के लिए सपोर्ट होगा। उस पर कई सारा काम चल रहा है कॉमर्स मिनिस्ट्री का, बट और थोड़ा फास्ट हो तो और भी अच्छी बात है। फार्म लॉज जो नहीं आ पाए हैं, अगर फार्म लॉज कंसल्टेशन कराकर सभी लोगों को इंक्लूड कराकर इन फार्मर्स इंटरेस्ट अगर फार्म लॉज इंप्लीमेंट किया जाए तो और अच्छी बात है। पर अगर एक ही चीज़ मुझे कोई कहनी है और MSMEs के संदर्भ में है, तो मैं कहूँगा डिलेड पेमेंट। डिलेड पेमेंट आज ये है कि अगर 1/3 ऑफ इकोनॉमी अगर MSMEs है तो उन्हें सपोर्ट करना जरूरी है। और आपको 0 पैसे लगेंगे, 0, सरकार को 0 पैसे वाली स्कीम है ये लाख दुखों की एक दो बात है। 0 पैसे वाली स्कीम ये है, आपने डिलेड पेमेंट जिसका साइज 8-10 लाख करोड़ का है, डिलेड पेमेंट का इश्यू, उस प्रॉब्लम का साइज 8-10 लाख करोड़ का है, उसका सॉल्व करने का एक ही सिंपल सा तरीका है। ट्रेड्स नाम का प्लेटफॉर्म है जहां पर ट्रेड डिस्काउंटिंग होता है। यानी अगर मुझे बड़ी कंपनी अगर कोई पैसा टाइम पे नहीं दे रही है तो मैं उसका इनवॉइस उस प्लेटफॉर्म पे डालता हूँ। कई सारे बैंक बोलते हैं भाई ये कंपनी तो बहुत बड़ी है, ये तो पैसा दे ही देगी। तो मैं एक काम करता हूँ, आपका जो 1 लाख का जो इनवॉइस है, मैं आपको 99,000 अभी के अभी दे देता हूँ। 1,000 रुपीज इज द इंटरेस्ट, व्हाट होता है 7-8% इंटरेस्ट होता है उसका, 9% ज़्यादा था, तो मैं उतना ले लेता हूँ, विच इज लेस देन इवन व्हाट यू पे टू द बैंक, और मैं आपको अभी के अभी पैसे दे देता हूँ अगले 2 दिन में। अब उससे क्या होता है कि मेरी वर्किंग कैपिटल की इशू रिजॉल्व होती है, और फिर वो बैंक उस बड़ी कंपनी से पैसे ले लेंगे। ये रहा ट्रेड डिस्काउंटिंग। अब ये तो चल ही रहा है, ये तो सरकार ने मान्यता दी है, RBI ने रेकमेंड किया था, वो वाले 3 या 4 अभी ट्रेड्स प्लेटफॉर्म से उस पर चल ही रहा है। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जो लोग नियम के अनुसार, सरकारी पार्लियामेंट्री एक्ट के नियम के अनुसार 45 डेज में बड़ी कंपनी ने पैसे देने हैं छोटी कंपनी, पर जो 45 डेज में दे नहीं रहे हैं उनका इनवॉइस जो है बड़ी कंपनी का कंपल्सरली इस प्लेटफॉर्म पे डाला जाए, ताकि बाकी बैंक्स इन्हें पैसे दे दे छोटी कंपनी को, फिर बैंक उनसे निपटाते रहें जब भी लेना है। वैसे ये बात प्रधानमंत्री महोदय ने खुद कही है 2012 नहीं, सॉरी माय अपोलॉजीज, 2018 में मेरे ख्याल से ये पार्लियामेंट में रूल पास हुआ है, सब चीजें हैं, पर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है। अगर एक चीज करनी है हमें, तो ट्रेड्स प्लेटफॉर्म को अगर GSTN से लिंक किया जाए, ठीक है, ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी सिक्योर, इन अ सिक्योर मैनर लिंक किया जाए, तब जाकर के डिलेड पेमेंट का इशू सॉल्व होगा, जिसकी साइज अभी 8 to 10 लाख करोड़, 8 लाख करोड़, यानी कितने जीरो हो जाएंगे देख लें, 5 और 7 12 जीरो है उसके सामने, 8 के सामने, इतना बड़ा आंकड़ा है वो। तो इतना बड़ा जो प्रॉब्लम है वो कम से कम आधे से ज्यादा सॉल्व हो जाएगा। अगर वो सॉल्व हो जाएगा तो छोटी कंपनियों का वर्किंग कैपिटल का प्रॉब्लम सॉल्व होगा, तो हम एक झटके में 10 करोड़ कंपनियों का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं एक झटके में। अब उसका खर्चा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितना है, 0 है। तो मुझे लगता है कि ये पॉलिसी है जिसके बारे में मैंने पहले कहा है, लिखा है, चर्चा की है बड़े आला अधिकारियों से, वो भी मानते हैं कि ये अच्छी बात है, अब तक नहीं हुई है। तो सरकार से दरख्वास्त ये रहेगी, रिक्वेस्ट ये रहेगी, गुजारिश ये रहेगी कि इसके ऊपर काम किया जाए तो बहुत अच्छा होगा। आई मीन इसमें आपने बहुत ही एक अच्छा और महत्वपूर्ण इशू रेस किया कि काफ़ी बार पॉलिसीज़ होती हैं पर इम्प्लीमेंट नहीं होती है, ऑन ग्राउंड उनका इम्प्लीमेंटेशन कहीं ना कहीं वो हो जाता है। बट आई रियली होप कि दिस गेट्स इम्प्लीमेंटेड। एंड एक और मेरे माइंड में प्रश्न है, लाइक MCCI में जो A है विच इज़ फॉर एग्रीकल्चर, आपने थोड़ा सा जिक्र किया था उसका पहले, सो इफ़ यू कैन टॉक अ लिटिल बिट मोर अबाउट एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर और फार्मर्स को आप क्या सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं? श्योर। एग्रीकल्चर तो बेस है हमारी इकोनॉमी का, हर इकोनॉमी का होता था पहले तो, बट हमारी इकोनॉमी का अभी भी बेस है।
ज़्यादातर लोग अभी भी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि इसके ऊपर कुछ पहल की जाए। ये तो मैं जब ज्वाइन किया संस्था उसके पहले की बात है, 1990s में इसके ऊपर MCCI को ए जोड़ा गया, जो ए ग्रीन में लिखा गया है क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए है। तो इसमें कई सारी पहल होती हैं। इसमें एक पहल मैं बताना चाहूँगा अभी आपसे कि अगर फार्मर को अपनी इनकम बढ़ानी है तो फार्मर को अपनी उपज जो है वो भारत में तो बेचनी है, भारत के बाहर भी बेचनी है। उसके लिए उन्हें एक्सपोर्ट निर्यात करनी है, एक्सपोर्ट करना है। तो इसलिए हमने एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन काउंसिल चालू किया है ताकि एक्सपोर्ट के बारे में, निर्यात के बारे में किसी भी जो फार्मर हैं उन्हें कोई भी अगर किसान को कोई भी अगर शंका हो, उन्हें पूछना है कि मैं ये मेरी उपज है, ये कहाँ पे बेची जा सकती है। अच्छा, बेची जा सकती है तो कैसे बेची जा सकती है। अच्छा, उसके लिए मुझे कौन मदद करेगा, कौन कंटेनर लेके जाएगा, क्या पेपर वर्क होता है ये तो मुझे पता नहीं है, कौन करेगा मेरे लिए, उसके ऊपर कैसे विश्वास रखा जाए। इन सब चीज़ों का जो जवाब है वो वही लोग देते हैं उन्हीं के भाषा में जिन लोगों ने एक्सपोर्ट किया हुआ है। तो जैसे कि अगर किसी एक फार्मर ने किया हुआ है तो हम उन्हीं को बुलाते हैं, बोलते हैं आप बताइएगा, आपकी भाषा में बताइएगा। तो ऐसे हमने बता दिया कई सारे लोगों को। तो हर साल हंड्रेड्स ऑफ फार्मर्स, किसान लोग ये हमें फ़ोन करके पूछते हैं, या तो कुछ लोग यहाँ आकर पूछते हैं, हम उनका जवाब देते हैं। फिर 2-1 साल पहले कुछ लोगों ने बताया कि भाई ये सब तो ठीक है, आप कई बार कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी जो है वहाँ से हमारा माल जाएगा यहाँ से, अब वो दिखाइए कहाँ पर है। तो कुछ फार्मर्स को वहाँ लेके गए, वो है मुंबई में, वहाँ दिखाया उनको। उन्होंने बोला यहाँ से कहाँ जाता है, तो हमने बोला ये जबल अली पोर्ट जाता है। तो बोला वो कहाँ है, तो हमने कहा दुबई में है। तो बोले हमको दुबई लेके जाइए, तो हमको दुबई लेके गए। उन्होंने कहा यहाँ से कहाँ जाता है, फिर हमने कहा अल अवीर मार्केट है, अल रास मार्केट है दुबई में, वहाँ पे जाता है। बोले हमें अल रास और अल अवीर दिखाइए मार्केट। तो कुछ लोगों को वहाँ लेके गए। तो उन्होंने बोला कि हम तो अकेले बात नहीं कर पाएंगे, आप हमको हेल्प करिएगा उनसे बात करने के लिए। तो हमने बात भी करा दी लोगों की। उसके बाद उसका आउटकम ये है कि कई सारे फार्मर्स ने अपने कंटेनर लोड कराकर एक्सपोर्ट कर दिया है उस मार्केट में, और हर साल कर रहे हैं पिछले कुछ सालों से, पिछले 2-3 सालों से। तो ये उसका इम्पैक्ट है। एक फार्मर जो सिर्फ फ़ोन करता है, उन्हें पता नहीं है कि क्या करना है। अब ये जरूरी नहीं कि हर फार्मर का वहाँ तक जर्नी हो जाए, ऐसा तो होगा नहीं, बट उनमें से कई सारे फार्मर की जर्नी एक फ़ोन कॉल करने से, मिलने से, और वो फ़ोन कॉल फ्री है उनके लिए, बाय द वे। उसमें MCCI का इनकम ज़ीरो है, ठीक है, और रहेगा भी नहीं। तो वहाँ से उनको लेके जाए, फिर उनको इंडिया का पोर्ट दिखाया जाए, फिर दुबई का पोर्ट, फिर दुबई का मार्केट, फिर दुबई के बिजनेस पीपल, फिर उनको कनेक्ट किया जाए कि आप एक्सपोर्ट करने के लिए ये रहे आपके पास 10 कॉन्टैक्ट, आप इसमें से कोई भी चुनिए। फिर ये रहा आपने इंश्योरेंस लेना चाहिए, फिर ये रहा गवर्नमेंट की स्कीम जो आपको हेल्प करती है। ये सब करा के उसका एंड गोल ये है कि कई सारे फार्मर्स अपने बड़े बड़े कंटेनर लोड करके एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। So sir, I am also curious to know कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फंडिंग की व्यवस्था कैसे करते हैं? तो 2-3 तरीके हैं फंडिंग के। एक ये है कि ये संस्था पिछले 91 ईयर्स से चल रही है। इसका मतलब यह है कि हर साल हमारी जो भी छोटी सी बचत होती है वो हम इकट्ठा करते रहें। पर फंडिंग का सोर्स एक होता है कि जो मेंबर्स हमारे होते हैं वो मेंबरशिप फीस देते हैं, हर साल वो कंट्रीब्यूट करते हैं। पर कई सारे मेंबर हैं, 3000 से ज़्यादा हमारे मेंबर हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ी रीजनल चेंबर है एक, वैसे देखा जाए तो देश का, जो कि बहुत एक्टिव मेंबर है, नॉट जस्ट टू काउंट द मेंबर फॉर द सेक ऑफ इट। दूसरी बात ये है, कई सारी जो गवर्नमेंट की स्कीम होती हैं वो हम लोगों तक पहुंचाते हैं जो रेलेवेंट स्कीम हो। तो टू दैट एक्सटेंट, जिस अगर हम एक क्लस्टर बना रहे हैं तो क्लस्टर में क्या होता है, अभी हमने क्लस्टर बनाया इलेक्ट्रॉनिक का, 67 करोड़ उसके लिए चाहिए थे, तो 50 करोड़ दिए मेटी ने, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड IT ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। उसमें से 6.7 करोड़ दिए गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने, 10 करोड़ हमने इंडस्ट्री से इकट्ठा कर लिए। फिर कई बार क्या होता है कि हम एक अच्छा इनिशिएटिव चला रहे तो कोई बड़ा उद्योजक आ जाएगा, बोला ये मैं सपोर्ट करना चाहता हूँ, तो हम कहेंगे उसको आपका एडवर्टाइजमेंट तो नहीं होगा, आपका कोई गुड्स और सर्विसेज तो बेचनी जाएगी इसमें से, बोला चाहिए नहीं, तो हम बोलते हैं देन यू आर मोस्ट वेलकम, तो वो भी शायद जुड़ जाए। तो ये अलग अलग तरीक़ों से उसका फंडिंग हो जाता है। पर फॉर्चुनेटली हमें
इनकम नहीं कमाना है इसलिए, और बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, तो कॉस्ट पर पर्सन जो होता है वो बहुत कम आ जाता है। जैसे कि अगर कोई हम कैपेबिलिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसके लिए हम चार्ज करेंगे आपको 1000 रुपीज फॉर द एंटायर डे, पर 40 लोग आते हैं, तो 40 लोग आते हैं तो ये होता है कि जो ट्रेनर है उसको हमें फीस देनी है, वो 20,000 देनी है, तो सिर्फ 500 रुपये देना है पर हेड, क्योंकि ज़्यादा लोग हैं। और ट्रेनर को पता है MCCI है, वो पैसे कमाने की बात नहीं है, यहाँ पे कमा ही नहीं सकते हो क्योंकि सेक्शन 8 कंपनी है, तो इसलिए यहाँ के ज़्यादा पैसे चार्ज करने में मतलब ही नहीं है कुछ मेरा। तो ये एक ऐसा इकोसिस्टम सा बन गया है। कई सारे लोग वॉलंटरली सपोर्ट करते हैं, कई सारे लोग सब्सिडाइज में सपोर्ट करते हैं, कई, बट हम क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं, इसलिए सम ऑफ दीज आर पेड बट टाइम लिटिल मनी, एंड मेनी ऑफ दीज आर फ्री सर्विसेज। Great, great. Thank you so much for sharing that. And एक और प्रश्न जो मेरे मन में आता है वो है what is your motivation? Because I can clearly see कि आप कितने passionate हो अपने काम को लेके. So I want to know like for day to day work आपकी क्या inspiration है, आपकी क्या motivation है? ओके, नहीं, आई थिंक अलग अलग चीज़ें लाइफ का पर्पस देती है अलग अलग लोगों को, तो हर कोई सही है उसमें। मेरे लिए कुछ अलग पर्पस था, बिकॉज आई ग्रू अप इन अ टाइनी विलेज। when I grew up there, the population was not more than 10,000 people, and I spent about first 17 years of my life there. I wouldn't see how a car looks like till I was 17. I wouldn't know how a plane looks like till I sat in it when I was about 21, 22. So I think I have lived life in a manner which did not have access to resources, right? And not just for me, but people around. So I always believe that if people are provided with access to information, infrastructure, and other resources, lot more of capabilities could be leveraged for the developmental reason. Because I believe that notwithstanding my engineering education or management, I lean to do something that has a developmental angle to it. And hence I joined United Nations, worked with United Nations, worked with Commonwealth Secretariat. But then I also worked with corporate for good 10 years in UK and other countries, right? And then I figured it out that industry association is a place where I'm not exactly working like an NGO, right? I mean, that's NGOs do some wonderful work, right? But each one of us need to find our own purpose. But here I can connect with my inclination towards developmental work, but it needs to be sustainable development, and sustainable development can happen when there are incentives involved and there is capitalism involved in a moderate way, in a manageable way, right? And that's why this, and of course, this also leverages the education I have had in management. So I think this is a place where I feel home, where I feel like I'm doing something that has a purpose. When I look at those farmers who have been able to send the container and increase their income, not just thanks to me, my colleagues who work on it, we all feel very happy. When we see 13,000 of those MSMEs who got benefit, not because of me, because of my colleagues, because of my predecessors who worked in this institution, we all feel happy about it. When we see a policy where we have been able to make a dent, we're able to make an impact, we all feel very happy about it. When we see a policy that we haven't yet been able to push for, we feel dejected about it. But then we always look at all the positive things, nice things that have happened, and say like, hey, look, many things have happened. This shall also pass. This shall also happen, and we will get the encouragement to do that. So that's been my rationale. But each one of us have our own stories, our own rationale, our own purpose. I have figured out mine. I'm sure that each one would figure out theirs, and that's what I'll wish each one of your listeners. Wow, amazing. I mean, you have such clarity of thought. You're following your purpose and you're so passionate about it. You're building something meaningful. So that is above everything, you know. And before we wrap up, one final question that I have for you is, if you had to give any advice to all the entrepreneurs, maybe people who have just started on the journey or already on the journey, and a lot of times, you encounter a lot of dejections, like you said, and you lose courage or you lose hope. So I want you to, send a message to all those people. Sure.
Hey, but a tiny background before the message, right? Last year, I interviewed 52 business people, and I did your role in a sense by asking questions to business people, but 52 of them, because there are 52 weeks, and I could do this every weekend one, right? And I asked them the same question. 70% of them were first generation entrepreneurs. So I talked with people, entrepreneurs, who started from scratch and built between 50 to 100 crore business. 50 to 100 crore business in their lifetime in 20, 30 years span. So here is what I learned from all of them. It's a very important thing to figure out what is it that you'd want to do. And if it is based on your context, your understanding, whether where you work, what you studied, or what you have observed, either of this, then there are higher chances of it working. Number two, there will always be problems. Some of those would be insurmountable, some of those would look very, very difficult. But if these 52 people have done it, and they have got 50 to 100 crore from very humble background, each one of these, then I'm sure you can also do this. If entrepreneurship is what you desire and aspire to do look at some of these stories. I'm not trying to tell you a story of how somebody make $1 billion. I'm trying to tell you stories of people who made 50 to 100 crore business in their own lifetime. आप और हमारे जैसा कोई छोटे शहर से आया हुआ, शहरों में छोटी जगह से आया हुआ, बहुत रिच फैमिली से जो नहीं है, वो व्यक्ति खुद का उद्योग शुरुआत करके 20-30 साल के समय में 50 से 100 करोड़ तक अपना उद्योग कैसे बना सकता है, ये कहानी आप सुनिएगा, उससे आपको बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन आएगा. जब आप 20-30 करोड़ करोगे ना, आप जरूर सुनिएगा 200-300 करोड़ वाली, फिर आप सुनिएगा 2-3 हज़ार करोड़ वाली. क्योंकि कई बार क्या होता है, आप सुनोगे बड़ी सी कहानी, बोले यार ये तो बहुत बड़ा है, ये तो हमसे नहीं होना, तो छोड़ ही दें. तो ये ना करें आप कृपया. So that's all that I would say. But otherwise, wonderful talking to you, Neha. Thank you so much for having me here. Thank you so much, sir. Everything that you said resonates with me, and I'm sure it resonates with all our viewers. सबने बहुत ज़्यादा inspiration दी होगी आपकी journey से, आपके thoughts से, आपके experience से. Thank you so much for joining us today. Thank you so much. Thank you again. Many thanks. Thank you, sir. Thank you so much for watching us till the end. I really hope that you found value in today's conversation. Please do like, subscribe, and share this with someone who needs to hear this. I always believe that we do not have to look far for inspiration, because there are so many incredibly inspiring stories all around us. Because as they say, that no one else sees the world the way you do, so no one else can tell the stories that you have. Thank you.